advised by many that we shouldn't go to Kashmir and it will be very difficult for us to film in Kashmir. That's the truth, okay? But when we set off for the recce, we went to Kashmir, we fell in love with Kashmir. It was my first time in Kashmir last year. And then we went to other parts of North India, other states. And both me and Pallavi looked at each other. And we realized, we came to know, we did not have to say a word. We just looked at each other and we knew that Kashmir is the location. Okay, Kashmir is heaven. भारत का ऐसा एक अंग है कि जिसको when you go there you fall in love with that part. And when it came to the song, another coincidence, Junaid came and sung the scratch of this song, and we were contemplating on कौन होना चाहिए final गाने का singer, and then we realized that somewhere that thing clicked. That Kashmir और इस सिनेमा का रिलेशन कुछ बहुत गहरा है. Everybody who's sitting here and who's shot in Kashmir, right from Vinit sir to Ramanjit, will realize that how beautiful it was. So it was wonderful to have you. Me and Remy and Pallavi had this discussion and we decided that Kashmir का कुछ गहरा connection इस film के साथ है. तो why not Junaid? So that is how we decided. Junaid has to sing. Congratulations, Junaid, and he has done a fabulous job. It brings goosebumps on each and everyone. We went to Kashmir, we fell in love with Kashmir. It was my first time in Kashmir last year. And then we went to other parts of North India, other states. And both me and Pallavi looked at each other. And we realized, we came to know, we did not have to say a word. We just looked at each other and we knew that Kashmir is the location. Okay, Kashmir is heaven. भारत का ऐसा एक अंग है कि जिसको when you go there you fall in love with that part. And when it came to the song, another coincidence, Junaid came and sung the scratch of this song, and we were contemplating on कौन होना चाहिए final गाने का singer, and then we realized that somewhere that thing clicked. That Kashmir और इस सिनेमा का रिलेशन कुछ बहुत गहरा है. Everybody who's sitting here and who's shot in Kashmir, right from Vinit sir to Ramanjit, will realize that how beautiful it was. So it was wonderful to have you. Me and Remy and Pallavi had this discussion and we decided that Kashmir का कुछ गहरा connection इस film के साथ है. तो why not Junaid? So that is how we decided. Junaid has to sing. Congratulations, Junaid, and he has done a fabulous job. It brings goosebumps on each and everyone. So much. Let us give it a 4. And just stay. I'll call another artist. वैसे हीरो हीरोइन को तो सब चाहते हैं, लेकिन बैटमैन को कौन चाहता है यहाँ पर? अरे क्या बात है. So let us have the Batman on the dais. राज अर्जुन जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से ये किरदार को निभाया है और किस तरह से निभाया है, आप आइए उन्हीं से सुनते हैं. वेलकम. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मुझे लगता है मेरी बालों और मेरी दाढ़ी ने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है बैटमैन की. पल्लवी से पूछते हैं, मैं बैटमैन हूँ क्या फिल्म में? In the film, he is playing the character Colonel Imam, but he, in spite of being from Pakistan, he is actually a very sensitive guy. He is a very sensitive guy, even on the screen and even off screen. Is that what I can say? He is my wonderful friend. He stood by me the moment I read this book. And I saw this thing, Colonel Imam. I called him कि तुम जनवरी में क्या कर रहे हो, कोई काम मत लेना. I have thought of something, so please keep time for me. And then I told him that you are doing Colonel Imam, and Kedar agreed to it. I and Kedar went to meet him first time. We were waiting down in a lobby, and he came. And जैसे ही वो ऐसे चल के आया, केदार बोला यही कर्नल इमाम है. This is a perfect thing for Colonel Imam. And that is how he was in the part of the film.
Thank you so much. तो मेरी पुरानी फिल्मों को रिलेट करके आपने शायद ये गैस कर लिया कि मैं नेगेटिव हूँ या विलन हूँ। एक्चुअली कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव या विलन होता नहीं है, वो सिर्फ साइकोलॉजी का खेल होता है। वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता है। वो तो ऑडियंस है या पब्लिक है, वो उसको एक ग्रे शेड में या ब्लैक शेड में या वाइट शेड में देखती है। थैंक यू सो मच। और एक और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ उन्हें बुलाऊंगी। एलियाना टुटेजा, प्लीज वेलकम हर ऑन द डाइस। Your take about this beautiful character that you have played. हम यहाँ पीछे देख रहे हैं ये तस्वीर उनकी। Yes, वास्तविकता में बहुत डिफरेंट लग रही है, but yes, your take. What would you like to say? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी केदार जी को, पल्लवी जी को कि मुझे यहाँ पे इस मूवी में किरदार निभाने को मौका दे दिया। और यहाँ मैं आप लोग देख सकते हैं ये मैं ही हूँ, मैडम जी का कैरेक्टर मैं ही निभा रही हूँ। और क्योंकि पहचान नहीं पा रही हूँ, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए हमारी मेकअप आर्टिस्ट को जिन्होंने ट्रेमेंडस वर्क किया मेरे ऊपर। एंड ऑफ कोर्स केदार जी जिन्होंने मुझे हेल्प किया ये कैरेक्टर में घुसने के लिए। वैसे मैंने ये सेम कैरेक्टर मतलब सेम बेस्ड कैरेक्टर मैंने किया है पहले, सो इट वाज अ बिट इजी बट इट वाज टोटली डिफरेंट इन दिस मूवी। सो यस, थैंक यू सो मच। Thank you so much. और मैं तो cool. Yes, you would like to say something. Makeup we have Vijay Shikharesh. Friend is my wonderful friend. He stood by me the moment I read this book. I read this book and I saw this thing, Colonel Imam. I called him कि तुम जनवरी में क्या कर रहे हो, कोई काम मत लेना. I have thought of something, so please keep time for me. And then I told him that you are doing Colonel Imam, and Kedar agreed to it. I and Kedar went to meet him first time. We were waiting down in the lobby and he came. And जैसे ही वो ऐसे चल के आया, केदार बोला यही कर्नल इमाम है. This is a perfect thing for Colonel Imam. And that is how he was in part of the film. Thank you so much. वाले को मौका दे दिया। और यहाँ मैं आप लोग देख सकते हैं मैं ही हूँ, मैडम जी का कैरेक्टर मैं ही निभा रही हूँ। और क्योंकि पहचान नहीं पा रही हूँ, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए हमारी मेकअप आर्टिस्ट को जिन्होंने ट्रेमेंडस वर्क किया मेरे ऊपर। एंड ऑफ कोर्स केदार जी जिन्होंने मुझे हेल्प किया ये कैरेक्टर में घुसने के लिए। वैसे मैंने ये सेम कैरेक्टर मतलब सेम बेस्ड कैरेक्टर मैंने किया है पहले, सो इट वाज अ बिट इजी बट इट वाज टोटली डिफरेंट इन दिस मूवी। सो यस, थैंक यू सो मच। Very happy that I'm playing a different role. I wouldn't say anything else, but I would say different role of a very important character that plays a very important part in the narrative. And I hope आप सबको पसंद आएगी। जो भी अलग-अलग कहानी के पहलू इस पूरे टाइम में गुजरते हैं। And I feel very privileged to be a part of a film where जहाँ सभी एक्टर्स इतने उम्दा हैं, राज अर्जुन, अनुजा, विनीत, लीना एंड मनोज जोशी जी खुद अभी पहुँचे हैं। बहुत प्रिविलेज ऑनर फील होता है कि मेरी पहली फिल्म चाहे छोटा रोल है पर आप सबके साथ शुरुआत हुई। सो बहुत बहुत शुक्रिया केदार का और पल्लवी जी का कि मुझे इसका हिस्सा बनाया। थैंक यू। Thank you so much. Pallvi ji, can you give the bouquet of flowers to all our artists? और दोस्तों, can we have a keep clapping? Sure होना चाहिए मैच फिक्सिंग के लिए। Yes, please stay back. दोस्तों, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को स्मरण कराते हैं और वो
पूरे इतिहास को, भारतीयता को स्वर्ण अक्षरों से, स्वर्ण पन्नों से अपनी यात्रा को लिखते हैं। चाणक्य से शुरू हुई यात्रा मुशर्रफ तक और आगे न जाने कितनी फिल्में, थिएटर, मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, सब में यकसा उसी तरह से प्रस्तुति देते आ रहे हैं और हर किरदार को उसी तरह से जीवंत करते आ रहे हैं। एक एक डायलॉग को पिछले 35 वर्षों से 1700 से भी ज्यादा शो चाणक्य का करने वाले हम सभी के लाडले प्रिय अभिनेता मनोज जोशी जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और इस मंच पर हालांकि उन्होंने मुशर्रफ का किरदार निभाया है, वेलकम। क्या बात है, आज तो आप मनोज जी, आज तो आप बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। ये बताइए, ये मुशर्रफ के रंग में आने के लिए पापड़ तो आपको बेलने नहीं पड़े, लेकिन आपको डंडे पड़े क्या? नहीं, पापड़ तो नहीं बेलने पड़े। तो एक्चुअली पहली बार जब केदार और पल्लवी जी मेरे घर आए और मुझे लगता है उन्होंने अभी तक कास्टिंग शुरू नहीं किया था और पहला ही कास्टिंग उन्होंने मेरा किया और मेरे घर आए, मुझे इतना ही कहा कि हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। बोले थोड़ी पीरियड फिल्म है, पीरियड मतलब 2003-4 से लेकर अभी तक की, विषय तो नहीं बताया। मैंने कहा, वो बोला ये कैरेक्टर है करके उसने फोटो बताया, मेरा फोटो और मुशर्रफ का फोटो। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा अभी अभी मैं एक मराठी फिल्म की है जिसमें भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का रोल करके आया, यूपी फाइल करके आया, अभी डायरेक्टली तुम मुझे दे रहे हो मुशर्रफ। तो मैं बोला क्या है, क्या स्टोरी क्या है? उसने पूरी स्टोरी मुझे नरेट की और कर्नल खटाना जी की बुक जो है सेफ्रॉन टेलर, वो मुझे दी पल्लवी ने और मुझे कहा आप पढ़ लेना। बोला ठीक है। मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी जैसे ही मैंने नरेशन सुना और बस फिल्म आपके सामने है। बहुत केदार ने अद्भुत डायरेक्शन किया है और मैं पल्लवी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि एक सिंगल प्रोड्यूसर, आज तो स्टूडियो का ज़माना है, कॉरपोरेट सेक्टरों का ज़माना है और फिल्म्स किस प्रकार की बन रही है इस विषय पर मैं नहीं बोलूँगा, बट एक अच्छी फिल्म बनाना और एक सिंगल प्रोड्यूसर ने बनाना आज की तिथि में बहुत चैलेंजिंग है और इसलिए मैं उसको सैल्यूट करता हूँ प्रोड्यूसर पल्लवी गुर्जर को और केदार गायकवाड़ को कि इस तरह से मार्केट में आना। क्योंकि देखो बड़ी फिल्म होती हैं, फिर उसका वो अच्छा अगर सब्सटेंस है तो चलती है, पर उसका भी क्या होता है, कितना भी प्रमोशन करो, बट अगर सत्व नहीं है, कंटेंट नहीं है, बात में बात नहीं है, तो वो फिल्म कुछ मायने नहीं रखती। ये हम देख रहे हैं। तो कंटेंट के साथ और इतने जबरदस्त कलाकार, भाई साहब ने क्या काम किया है यार, आई लव यू, ही जस्ट रॉक्ड इन द फिल्म। इवन विनीत ग्रेट काम किया है। मैंने कल ही पूरी फिल्म देखी और ऑफ कोर्स अनुजा, यू डिड अ एक्सीलेंट जॉब। मतलब इतनी होल्ड और कमाल, मेरी फिल्म है इसलिए नहीं बखान कर रहा हूं, बट एक चीज, और क्यों की फिल्म ये, तो ये इसलिए क्योंकि इस प्रकार के झूठे नैरेटिव फैला के अंदर के भाई भाई को लड़ाना, ये काम सत्ताधीश किस प्रकार से करते थे और फिर एक झूठे नैरेटिव को वाचा देना कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है, इस प्रकार से
सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए इस प्रकार से देश को स्टेज पर रखना, ये प्रकार के खेल खेले जाते थे और ये उजागर होना बहुत जरूरी है और ये काम इस लड़की ने किया है, इसलिए मैं इसको सैल्यूट करता हूं। और केदार ने इतना अद्भुत दिग्दर्शन किया है, इतना अद्भुत निर्देशन किया है कि पूरी फिल्म आपको विचार कर अंतर्मुख करती है और आपको इतना टच करती है कि बॉर्डर पे संरक्षित करने वाला पूरी कंट्री को, पूरे देश को आंखों में मतलब बिल्कुल नींद न आते हुए हम लोग सुख से सोते हैं और वो वहां जगते हैं। और एक संदेश इस फिल्म से मिलता है कि हमारे देह और भगवान के बीच में देश आता है, ये संदेश है इस फिल्म का। तो हर राष्ट्र प्रेमी ने, हर भारतवासी ने, हर भारत के नागरिक ने ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। और मैं माध्यम को बोलता हूं कि माध्यम आप लोग चौथा स्तंभ हो और चौथे स्तंभ का ये भी काम है कि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आपका काम है। ये कोई बड़ी मैं इसलिए बारंबार बोलता हूं कि इतना मार्केटिंग और करोड़ों रुपए का मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि इससे बढ़िया मार्केटिंग कोई नहीं है, जो जिसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, और ये सशक्त करने वाले आप ही हो। और इसलिए माध्यम मैं आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये मैच फिक्सिंग जो फिल्म आ रही है उसको सभी तक पहुंचाना ये आपका भी कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं, और आप जरूर पहुंचाइए। और सभी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि 10 जनवरी को परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म जो है वो थिएटर में जाकर देखिए। आपको निश्चित रूप से एक नया चैतन्य निर्माण होगा ये फिल्म देख के, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो कहा मनोज जी, फिल्म तो योर टेक ऑन द फिल्म, जब इस तरह की फिल्म आती है जो देशभक्ति से ओतप्रोत होती है, जिसमें कुछ कहने की बात होती है, आपने कैसी प्रिपरेशन की इस फिल्म के लिए? First of all, sorry, my throat is really bad. I would really like to thank Pallavi and Kedar for making me a part of this important film. I have always been fortunate, very, very fortunate that I'm always a part of something very important, you know, which gives a message, which tells you the history or the series of events that are necessary to be told. So, you've already seen मेरा character क्या है. You already know that I am playing Mrs. Anuradha Padwardhan, the wife, the army wife, and the Kedar. I mean, I would say Kedar का brief ही इतना perfect था, and he really wanted the wife to be a very, very strong woman. You saw that snippet जहाँ पे I'm talking to him before the song starts, and both of them, Pallavi and Kedar, did not want me to cry at all, and that is how strong that character is. So that's it. Thank you very much. थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपने आंखों से कैमरे के जरिए बहुत कुछ कह दिया। मैं आपका सम्मान करने के लिए कंवर खटाना जी मिलिट्री में थे, उन्होंने ये किताब लिखी और मैं आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑन RVS मणि, सैफरन टेरर। तब वाइल गूगलिंग आई गॉट दिस बुक, द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर। बहुत दिनों से इस विषय पे कोई फिल्म नहीं आई है, ऐसा मैं सोच रही थी कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। जब ये किताब मुझे सामने नजर आई, आई वेंट थ्रू द बुक एंड द बुक हैड अ स्टोरी। मैंने राइट्स तो ले लिए एंड फिर एक दिन मैंने केदार को पढ़ने के लिए दे दी। केदार ने दूसरे दिन मेरे को फ़ोन करके बोला 10 पेजेस नहीं पढ़े पल्लवी, इसमें ना मुझे फिल्म दिख रही है। एंड वी जस्ट टुक दिस होल थिंग अहेड। सो आई थैंक कंवर खटाना जी for giving me the rights and choosing me to give the rights, and also Anuj for converting this book into the screenplay, which was also a very difficult task, and in a very limited period he could come up with so many venues,
places and characters कि अभी आप काम चालू करो और मैं स्क्रीन प्ले लिखना शुरू करता हूँ. I would hand over to Anush. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm sorry, I'm coming straight from the airport. Got a little late. You know, I wrote this book about a year and a half ago. It took me 1 year of research work to write this book and the year to write. I have an intelligence background. I spent major part of my military life in intelligence. I saw terrorism from very close quarters in almost every part of the country, that includes Kashmir, when there were problems there. I was in Punjab when terrorism was at its peak, and I had operated in this environment. I had access to certain information, so I thought the public, the people of India have a right to know how things happened and why things happened the way they did. So I wrote this book. It is a work of fiction for many reasons, some of which I cannot tell you here, but work of fiction notwithstanding. But the major events which you read in the book are available in public domain. You can even Google it and you will find there most of the information which is there. I never thought a movie will be made on my book. In fact, surprisingly, I was contacted by 2 people from Mumbai, Palvi being one of them. I spoke to both of them and when I met Palvi and we discussed things, so I was very sure she is the one who will make a movie and will make a good movie on the book. So that things don't go wrong while shooting about matters military, I embedded a officer with them during the entire shooting. Kal Hemant Aluwali hai. So you will find all these operations which you see here and you will see in the movie are actually the way they happen in the army. You will not find anything amiss as far as the army behavior, protocol, sensitivity goes. I never thought I will see my characters of the book alive on the screen. They came alive. And for that, I must thank the script writer Anuj. He did a wonderful job. The dialogues are beautiful, and all these cast, the director, Kedar, come here. Kedar did a wonderful job, and the hero, effect, come please. If you see Vineet in the uniform, I could not differentiate that he is not the regular officer of Indian Army. He somehow brought this character 100% alive on the screen. Thank you. Thank you. It is a wonderful movie. We had a show on Saturday in Delhi, primarily for the military people. You must have heard of the Agniveers.